بھارتی لوگوں کو ایجنٹ خان پر شک، پورے شہر میں پاکستانی ایجنٹ کی افواہ پھیل گئی۔ ایجنٹ مسٹر خان پارٹ 12۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ کیسے مسٹر خان نے بی ایس ایف ایجنٹ بھارتی لڑکی سے اپنی شناخت چھپائی اور مندر سے نکلنے کی کوشش کی، آگے جاننے کے لیے دیکھیے آج کا پارٹ 12۔ گاڑی نزدیک آ رہی تھی اور نزدیک، اب اس کا انجن بمشکل 15-20 گز دور رہ گیا۔ جب وہ اچانک لڑکی کی طرف گھوما، اس نے اپنے دونوں بازو سیدھے کیے اور پوری قوت سے 2 ہتھڑ اس کے سینے پر مارا۔ لڑکی کے لیے یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ صدمے ہی سے چکرا کر رہ گئی اور دور جا گری اور شاید زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن خان اس کی حالت دیکھنے کے لیے رکا کب تھا۔ انجن بمشکل 2 گز دور تھا جب وہ اپنے قدموں پر اچھلا اور ایتھلیٹس کی طرح اپنے جسم کو ریلوے لائن کے پار لے گیا۔ اس کے اس عمل کا مکمل نظارہ اگر کسی نے گاڑی میں سے کیا بھی تھا تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ لڑکی اور اس کے درمیان خاصی لمبی ٹرین تھی۔ خان یہاں پر بہت گھبرا چکا تھا۔ اگر اس لڑکی کو کوئی خاص نقصان پہنچ جاتا تو مسٹر خان کے لیے اور مشکلات پیش آتی۔ خان دیوانہ وار کھیتوں کے اندر ہی اندر بھاگ رہا تھا۔ اس کے حساس کانوں نے اس دوران ریوالور سے کی جانے والی فائرنگ کی آواز سن لی تھی۔ ٹرین کے شور میں یہ آواز خاصی دبی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جان گیا تھا کہ لڑکی کے ہمراہی ہوا میں فائرنگ کر کے شاید اپنی بوکھلاہٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطرناک صورتحال کے باوجود ان لوگوں کی بے بسی پر بھاگتا ہوا خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ چشم تصور سے ریلوے لائن کی دوسری طرف موجود ان لوگوں کو غصے سے ہونٹ کاٹتے دیکھ رہا تھا۔ جب تک گاڑی گزرتی اور وہ لوگ لائن عبور کر کے دوسری طرف آتے، خان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ گھنے اور اونچی کماد کی فصل سے بھرے کھیتوں میں 2-2.5 فرلانگ دور جا چکا تھا۔ اس کی سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ پچھلے 20 گھنٹوں سے وہ اپنے آپ سے اعصاب شکن جنگ لڑ رہا تھا، لیکن حوصلہ ہارنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کھیتوں کے سلسلے سے اب وہ باہر نکل چکا تھا اور اپنے بائیں طرف اسے وہ سڑک بخوبی دکھائی دے رہی تھی جس پر شہر جانے کے لیے رکشہ ٹیمپو بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ مسٹر خان نے یہاں پر اپنی سانسوں پر قابو پانے کے لیے تھوڑا ٹھہر لیا۔ سڑک کے کنارے پہنچنے تک مسٹر خان بالکل نارمل ہو چکا تھا اور اس کی سانس بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اسے علم تھا کہ دشمن شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگتا اس کے تعاقب میں آ رہا ہے، لیکن وہ اتنے اطمینان سے سڑک کے کنارے کھڑا تھا جیسے ابھی فٹ بال میچ سے فارغ ہو کر آیا ہو۔ ایک ٹیمپو کے نزدیک آنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور اس میں پہلے سے موجود سواریوں کے ساتھ پھنس کر بیٹھ گیا۔ ٹیمپو میں موجود سواریوں نے اپنے اپنے زاویے سے اس پر نگاہ دوڑائی، لیکن خان جان بوجھ کر کسی سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اکثر اسی روڈ پر سفر کیا کرتے تھے اور اپنے درمیان کسی اجنبی کو دیکھ کر ان کا چونکنا بھی ضروری تھا۔ شاید اسی لیے اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ایک گہری آنکھوں والے سکھ نے اس سے پوچھا، کتھوں آیا ہے؟ خان نے پہلے ہی خود کو ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ اس نے کہا، چندر والی۔ بوڑھے نے کہا، پرونا ہے۔ دوبارہ اس نے خان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سوائے معصومیت کے اسے کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ ہاں جی، میں امرتسر سے آیا ہوں۔ خان نے ایسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا کہ دوبارہ بوڑھے سکھ کو، جو شکل سے ہی پولیس کا ٹاؤٹ دکھائی دے رہا تھا، اور کوئی بات پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس کے ساتھ والے کسی مسافر نے شاید خان کے تند و تیز لہجے کو بھانپ لیا، تبھی اس نے بوڑھے سکھ کو قریباً ڈانٹتے ہوئے کہا، سرپنچ کیا بن گیا ہے یار، مصیبت ڈال رکھی ہے اس نے، خامخواہ لوگوں پر شک کرتا رہتا ہے۔ ساتھ والی سواری نے کہا، اور کیا؟ شاید یہ لوگ بوڑھے سکھ سرپنچ کی عادت سے واقف تھے اور انہوں نے بطور ہندو اس بات کا برا منایا تھا کہ ان کے ایک ہندوستانی سے اس لہجے میں گفتگو کی جائے۔ سرپنچ نے کسی بات کا جواب نہ دیا اور چپکا ہو کر بیٹھا رہا۔ پھر وہ رات اپنے دیہاتوں کے گرد گرد ہونے والی ہلچل کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ وہ کسی پاکستانی جاسوس کا ذکر کر رہے تھے اور ایک آدمی بڑے رازدارانہ لہجے میں دوسروں کو بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک پاکستانی جاسوس کو کنویں میں زہر ملاتے دیکھا۔ اس سوال پر کہ اس نے اسے گرفتار کیوں نہیں کروایا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب تک وہ مقامی پوسٹ پر اطلاع کرتا، وہ جاسوس بھاگ گیا تھا اور سرکار نے اب وہ کنواں بند کروا دیا ہے۔ خان نے انہیں اپنی باتوں میں مصروف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ٹیمپو میں سواریاں اس طرح گھسی ہوئی تھیں
कि बाहर लटका कंडक्टर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही बात खान के लिए फायदेमंद साबित हुई और एक जगह जहां टेम्पू रुका उसे कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई पड़ी। शायद ये बेचारे नजदीकी देहातों के रहने वाले लोग थे जो अपने कारोबारी जिंदगी के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहे थे। सवारियों की टांगों को इधर उधर करता वो बाहर निकल आया। मकामी सवारियों के किराए उसे हिफ्स थे। उसने रुपए का एक नोट कंडक्टर के हाथ पर रखा और उसकी तरफ देखने लगा। कंडक्टर ने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे उसे लौटा दिए और जोर से टेम्पू पर हाथ मारा। खान ने एक लम्हे के लिए रुककर सूरत हाल का जायजा लिया। इस स्टॉप के बिल्कुल पीछे एक ही कतार में बनी 5-6 दुकानें नजर आ रही थीं। शायद ये उस इलाके का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता गांव था। एक दुकान पर जहां एक बूढ़ा सा दर्जी सर झुकाए मशीन चलाने में मसरूफ था, उसे कपड़े और कैनवस के थैले और धोतियां लटकी नजर आ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर दुकान पर पहुंच गया। धोती की कीमत उसने जानबूझकर खासी बहस के बाद कम करवा ली थी और एक कपड़े का थैला भी खरीद लिया था। उसका रुख परली तरफ खेतों की तरफ था। लोगों की आमदो रफ्त अच्छी खासी शुरू हो गई थी। वो नजर बचाकर एक खेत में पेशाब करने के बहाने घुसने में कामयाब हो ही गया। थोड़ी देर बाद जब वो खेत से दोबारा बरामद हुआ तो बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान था। उसके जिस्म पर कमीज तो वही थी, लेकिन धोती बदल चुकी थी, जिसे उसने ब्राह्मणों के मखसूस अंदाज में बल देकर बांधा हुआ था। सुबह मंदिर के पुरोहित ने उसके माथे पर जो चंदर लगाया था, उसके बाद वो बिल्कुल ब्राह्मण लग रहा था। दिल ही दिल में अपने नए रूप का तस्वुर करके वो मुस्कुरा दिया। अब वो दोबारा उसी स्टॉप की तरफ जा रहा था जहां वो उतरा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी चाल बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चलने का अंदाज इस बात की चुगली खा रहा था कि उसकी दोनों टांगों में कुछ फर्क है। खेतों के सिलसिले से स्टॉप तक वो यही चाल चलता हुआ आया, लेकिन क्या मजाल जो उसमें एक्टिंग का शायबा तक भी गुजरा हो। बस स्टॉप की बनी दुकानों में से वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। अगर वो बूढ़ा दर्जी जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही धोती और थैला खरीदा था उसे दोबारा देख लेता तो शायद पहचान ना सकता। उसने दुकानदार को पाव दूध की चाय और मिठाई लाने को कहा और खुद देहातियों के से अंदाज में दोनों टांगे पसार कर बेंच पर बैठ गया। चाय पीते हुए उसे बड़ी फरहत और ताजगी का एहसास हो रहा था। एक लंबी और थका देने वाली दौड़ के बाद चाय के चंद घूंटों ने ही उसके हलक में उतर कर उसे दोबारा चौकस कर दिया था। वो सोच रहा था कि यहाँ से अभी निकल जाए या अच्छे वक्त का इंतजार करे। इस बात का तो उसे बखूबी एहसास था कि अगले 2-3 रोज तक भी इस इलाके के चप्पे चप्पे पर फैले हुए सिक्योरिटी के सरकारी कुत्ते अपनी जगह से नहीं जाएंगे। उसने जिस तरह बार बार उन लोगों के फैलाए हुए जाल को तोड़कर अपने लिए रास्ता तलाश किया, उसके बाद वो लोग किस बुरी तरह झुंझुलाहट में मुब्तला होंगे, इस बात का एहसास उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में कौन कर सकता था। अपने करीब बैठे एक और शख्स की घड़ी पर उसने नजरें दौड़ाई। 11 बज रहे थे और उसने 12 बजे तक ही बैठने का फैसला कर लिया। आधे घंटे बाद उसने चाय खत्म की। दुकानदार भी उसकी तरफ से बिल वसूल करने पर शुक्रगुजार था। अब कुछ नजरें उसकी तरफ ख्वामखा उठने लगी थी और इससे पहले कि वो किसी शको शुबे का शिकार होते, खान ने वहां से उठकर जाने का फैसला कर लिया था। एक खस्ता हाल लारी में सवार होकर अब वो शहर की तरफ जा रहा था। शहर के बाहर चुंगी पर वो उतर गया। रेस्ट हाउस के सामने रखा उस इलाके का नक्शा एक मर्तबा फिर उसकी आंखों के सामने फैलता चला गया। कर्नल साहब की उंगली एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाती, बिल आखिर चुंगी पर आकर ठहर गई। उसे याद आ गया कि ये नहर शहर के बाहर घूमकर शहर में दाखिल हो जाती है। चुंगी के बाहर शहर में दाखिल होते वक्त उस बस की चेकिंग किस शिद्दत से होती है, इसका अंदाजा तो उसे सवारियों की बातों से ही हो गया था। बस में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो लोग किसी पाकिस्तानी जासूस के फरार की कहानी सुना रहे थे। मुख्तलिफ मुंह, मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ नौयत के तस्करों से लुत्फानंदोज होता ही वो यहाँ तक पहुँच गया था। जब इस बात की खबर आग की तरह इन कस्बात में फैल चुकी थी तो सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। यही कुछ सोचकर उसने नहर के किनारे किनारे चक्कर काट कर पैदल ही शहर तक पहुंचने का फैसला किया। इस तरह से कम ये उम्मीद जरूर थी कि वो सिक्योरिटी वालों की कयाम करदा मुख्तलिफ चेक पोस्टों से तो निजात हासिल कर सकेगा। नहर की पटरी पर इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। दिल ही दिल में उसने नहर के दोनों एतराफ देहातों के नाम दोबारा दोहराए। एक अच्छे जासूस की बेहतरीन पहचान यही है कि वो कोई भी अगला कदम उठाने से पहले उसके नताइज पर गौर करे और हमेशा एक कवर स्टोरी लेकर चले। उसके खिजर सूरत इंस्पेक्टर ने उसके लाशऊर में अंगड़ाई ली और खान एक मर्तबा फिर उसी रेस्ट हाउस में पहले नक्शे के सामने आन खड़ा हुआ। नहर की पटरी का एक मोड़ घूमते ही वो अचानक चौंक पड़ा। सामने घनी जंगली घास से एक जीप निकलकर बाहर आ रही थी। उसके लिए इतना मौका भी नहीं था कि अपना आगे बढ़ा कदम ही पीछे हटा ले। क्या करूं, उसने सोचा और उसी लम्हे एक फैसले पर पहुंच गया। उसने बड़े एतमाद से कदम उसी तरह बढ़ा दिए। जीप उसके नजदीक से कीड़ी की चाल चलती आगे निकल गई।
लेकिन अचानक ही उसे ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। मिस्टर खान को एक जोरदार झटका लगा, लेकिन फौलादी आसाब के मालिक खान के लिए अपनी किसी भी कैफियत पर काबू पाने को सिर्फ चंद सेकंड ही काफी थे। ठहर जाओ, कौन हो? ललकारने वाले का लहजा मद्रासी होने की वजाहत कर रहा था। खान उसकी आवाज पर अचानक ही पलटा था। उसके दोनों हाथ मुआफी मांगते अंदाज में बंधे हुए थे और चेहरे पर उसने एक आलम की मासूमियत तारी कर रखी थी। उसने मासूमियत से कहा कि गरीब आदमी हूँ साहब, किधर जाओगे? उसी मद्रासी हवालदार ने फाड़ खाने वाले लहजे में उसको मुखातिब किया। खान के हाथ बदस्तूर बंधे हुए थे। एक लम्हे के लिए उसके साथ बैठे लोगों ने उसका जायजा लिया। फिर किसी ने ठोस पंजाबी लहजे में उसे करीब आने का हुक्म दिया। इधर आओ। खान की नजरें सिख ड्राइवर पर चली गई थी, जहां जवान अपनी गोद में स्टन गन रखे बज़ाहिर माहौल से बेखबर नजर आ रहे थे। कांपता हुआ उसी तरह हाथ बांधे वो उनके नजदीक आ गया। कहाँ के हो तुम? उस सिख जमादार ने अपनी मूछों को ताव दिया। खान दोबारा शर्माया। मथोपुर के। मद्रासी हवालदार ने उसे नजदीक आने को कहा। ओए इधर आ। जैसे ही खान नजदीक आया, उसने हाथ लंबा करके एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। खान उलट कर दूर जा गिरा। उसने बकायदा रोते हुए हाथ बांधने शुरू कर दिए। उसी सिख ने खान से कहा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता ये ममनू इलाका है? जमीन से उठते हुए खान ने सिख के चेहरे पर नागवारी के तासुरात महसूस किए। सिख के जहन ने शायद मद्रासी हवालदार की हरकत पसंद नहीं की थी और ये फिक्रा बोलकर भी शायद वो उसे मजीद अताब से बचाना चाहता था। उसने रोते हुए अचानक ही सिख जमादार के पांव पकड़ लिए। मुझे मालूम नहीं था मालिक। सिख ने उसे बनावटी डांट पिलाई। जल्दी दफा हो जा। खान उसको दुआएं देते उठकर खड़ा हो गया और दोबारा उसी तरफ बढ़ा। अबे इधर मर। मद्रासी हवालदार ने उसे डांटा और नहर की दूसरी तरफ इशारा किया। खान ने कहा, महाराज जी, रानी के वो तो सामने ही है। उसने उंगली के इशारे से एक समत इशारा किया। यहाँ एक गांव के आसार बड़े वाजे दिखाई दे रहे थे। खान ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना लंबा चक्कर किस तरह पूरा करूंगा? बच्चा बीमार है मालिक। उसने दोबारा हाथ बांध दिए। उसी सिख जमादार ने दोबारा उसकी मसीहाई की। बोला, अच्छा जल्दी चला जा। इससे पहले कि मद्रासी हवालदार कोई अगला हुक्म सुनाता, उसने भागने से के अंदाज में कदम आगे बढ़ा दिए। इसके साथ ही सिख जमादार ने जीप के इग्निशन में कुंजी घुमा दी। इंजन स्टार्ट होने की आवाज ने खान के तने हुए आसाब ढीले कर दिए। आम हालात में कभी इस तरह थप्पड़ खाने की जिल्लत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अचानक पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसने दिल ही दिल में एक मोटी सी गाली मद्रासी हवालदार को देते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ फेर कर उन्हें सहलाया। उस दौरान जब वो गिर कर जमीन से उठा तो जीप के कोने पर बना एक मखसूस निशान उसकी नजरों में आ चुका था। गो के जीप पर अच्छी तरह मट्टी से लीपा पोती की गई थी, लेकिन हाथ का निशान बहरहाल नुमाया था। उसने अपने जहन में किसी बड़े ही महफूज गोशे में इस निशान को महफूज कर लिया। अब उसके लिए रानी के की तरफ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रानी के वाकई उसी गांव का नाम था जो यहाँ से बमुश्किल आधा मील के फासले पर नजर आ रहा था और उसे वही रास्ता जाता था जिस तरफ से ये जीप निकल कर आई थी। अपना गाल सहलाते हुए खान ने उसी रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए। उसने अपने जहन में किसी भी मुमकिना इम्कान को रद्द नहीं किया था। कुछ भी मुमकिन था, ये भी कि जीप वाले कहीं छुप कर उसकी हरकत का जायजा ले रहे हों। अगर उसने गलत रास्ता अपनाया तो वो लोग उस पर कोई भी शक कर सकते थे और एक मर्तबा शक होने की सूरत में यहाँ से बच निकलने के इम्कानात बिल्कुल मादूम थे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। मिस्टर एजेंट खान की सीरीज को मुकम्मल तौर पर एंजॉय करने के लिए अभी एजेंट खान के पहले पार्ट्स देखें। अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।